Welcome all the students and very good evening. You are most welcome at day 14. So it is exercise, reading exercise. Enjoy it. हमें सीखना ये होता है कि जब भी हम एक्सरसाइज रीडिंग एक्सरसाइज को एंजॉय करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले हमें उनको वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग करके। We play evening games in our school regularly. One evening we were playing football. The other team scored a goal. We were trying hard to score a goal. Our playmate Mukesh was running very fast after the football. His leg slipped. He fell down and cried loudly with pain. He had hurt his arm. We stopped playing. I rubbed his arm. I took him to hospital on my motorcycle. The doctor came. He examined him carefully. The doctor gave him a tablet. Then the doctor plastered him his arm. The doctor said that his arm had been fractured. He also said that he would be all right in about 2 weeks. Then I went to the house of Mukesh. I informed them about Mukesh. They thanked me. So this is how you can go through word to word. So first of all you have to read it word to word. After that try to read it with phrases. Suppose we play evening games in our school regularly. In evening we were playing football. The other team scored a goal. We were trying hard to score a goal. Our playmate Mukesh was running very fast after the football. His leg slipped. He fell down and cried loudly with pain. He had hurt his arm. We stopped playing. I rubbed his arm. I took him to hospital on my motorcycle. The doctor came. He examined him carefully. The doctor gave him a tablet. Then the doctor plastered his arm. The doctor said that his arm had been fractured. We also said that he would be alright in about 2 weeks. Then I went to the house of Mukesh. I informed them about Mukesh. They thanked me. So by afterward you can read it by phrases. Phrase after phrase you can go through the sentence until the full stop. Okay, now I will read as a guide reading. We play evening games in our school regularly. One evening we were playing football. The other team scored a goal. We were trying hard to score a goal. Our playmate Mukesh was running very fast after the football. His leg slipped. He fell down and cried loudly with pain. He had hurt his arm. We stopped playing. I rubbed his arm. I took him to hospital on my motorcycle. The doctor came. He examined him carefully. The doctor gave him a tablet. Then the doctor plastered his arm. The doctor said that his arm had been fractured. He also said that he would be all right in about 2 weeks. Then I went to the house of Mukesh. I informed them about Mukesh. They thanked me. So this is how you can go through word to word. Sorry, full stop to full stop. So this is the right way to use your sentences. Yes, जिन जिनको समझ में आ रहा है प्लीज़ फटाफट लाइक बटन पे कमेंट करते जाएं और बटन दबाते जाएं। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है जो भी क्वेश्चंस है प्लीज़ ट्राई टू पुट योर क्वेश्चंस. I will reply all the questions. Yes, keep it up. Be fast. Now try to get the fluency after 2-3 readings. We play evening games in our school regularly. One evening we were playing football. The other team scored a goal. We were trying hard to score a goal. Our playmate Mukesh was running very fast after the football. His leg slipped. He fell down and cried loudly with pain. He had hurt his arm. We stopped playing. I rubbed his arm. I took him to hospital on my motorcycle. The doctor came. The doctor came.
He examined him carefully. The doctor gave him a tablet. Then the doctor plastered his arm. The doctor said that his arm had been fractured. He also said that he would be all right in about 2 weeks. Then I went to the house of Mukesh. I informed them about Mukesh. They thanked me. So this is how you can increase your fluency. Every time, by and by you will read it and you will increase in fluency. So this is only the way by which you can improve your reading habits, and after that you will try to understand easily, and it is not a big deal. Keep it up. Just keep continue. Automatically you will get success. या हम कह रहे हैं कि वी प्ले इवनिंग गेम्स इन आवर स्कूल रेगुलरली. यहाँ कोई ऐसा वर्ड हो आप उस वर्ड को भी देखें. यदि आपको हार्ड लगे तो उसको आपको क्या करना है, एन सर्कल करना है या फिर आपको उस पर स्टार लगा देना है. स्टार लगा करके आप उसका मीनिंग याद करें और रोज़ अपने रजिस्टर में लिखें. आपकी वोकेब भी बढ़ते जाएगी. यदि आपको लगे कि इसका कोई ऑपोजिट भी हो सकता है या फिर इसका कोई सिमिलर वर्ड्स भी हो सकता है तो आप सिमिलर वर्ड को भी ढूंढने की कोशिश करें. सो नाउ वी हैव गॉट दिस. Which one? Evening. So evening time, school, the place where student studies and teacher teaches. So that is the place. We play evening games in our school regularly. हम हमारे स्कूल में इवनिंग गेम नियमित रूप से खेलते हैं. वन इवनिंग वी वर प्लेइंग फुटबॉल. एक शाम को हम फुटबॉल खेल रहे थे. द अदर टीम स्कोर्ड अ गोल. अगली टीम ने या दूसरी टीम ने स्कोर गोल किया. वी वर ट्राइंग हार्ड टू स्कोर ए गोल. हमने भी बहुत कोशिश की गोल करने की, या ट्राइंग हार्ड कोशिश कर रहे थे. आवर प्लेमेट मुकेश वॉज रनिंग वेरी फास्ट आफ्टर द फुटबॉल. हमारा जो प्लेमेट था मुकेश वॉज रनिंग वेरी फास्ट. अब देखिए क्लास में कोई आपका साथी होता है तो वो क्लासमेट कहलाता है, और यदि रूममेट होता है तो रूममेट कहलाता है. यहाँ खेल में कोई खिलाड़ी आपका साथी है तो वो हो गया प्लेमेट. तो आप इसको क्या कह सकते हैं, जो आपके साथ खेल रहा हो टीम में हो, प्लेमेट. सो योर playmate मुकेश वॉज रनिंग वेरी फास्ट आफ्टर द फुटबॉल. अब फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा था और वो भी कितना, वेरी फास्ट. तो यहाँ हम कह सकते हैं रनिंग वेरी फास्ट आफ्टर फुटबॉल, फुटबॉल के पीछे. ऐसे ही हुआ क्या, हिज लेग स्लिप्ड, उसका लेग स्लिप हो गया. ही फेल डाउन, और वह गिर पड़ा. एंड क्राइड लाउडली, और जोर जोर से चिल्लाने लगा. क्राइड मीन्स चिल्लाया. ही हैड हर्ट हिज आर्म, उसके आर्म में चोट लगी. वी स्टॉप्ड प्लेइंग, हमने खेलना बंद कर दिया. वी स्टॉप प्लेइंग, ऐसे हमने डांस करना बंद कर दिया तो क्या कहेंगे, वी स्टॉप सिंगिंग. हमने आना बंद कर दिया, वी स्टॉप्ड कमिंग. इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को बड़े आराम से बना सकते हैं, ईजी बन जाता है. रब्ड हिज आर्म, हमने उसके हाथ को रगड़ा. थोड़ा सा हाईलाइटर का कलर चेंज कर लेते हैं, ये येलो ठीक रहेगा. ही हैड हर्ट हिज आर्म, उसके आर्म में चोट लगी. आई टुक हिम टू हॉस्पिटल. अब देखो किसी को भी कहीं भी लेके जाना, आई टुक हिम, मैं उसे लेके गया. टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल. ऑन माई स्कूटर, मेरे स्कूटर पे, या फिर माई मोटरसाइकिल, मैं मेरी मोटरसाइकिल पे उसे लेके गया. द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए. ही एग्जामाइंड हिम केयरफुली, उन्होंने उसको अच्छे ढंग से देखा. केयरफुली, अच्छे ढंग से. द डॉक्टर गेव हिम अ टैबलेट, डॉक्टर ने उन्हें टैबलेट दी. देन द डॉक्टर प्लास्टर्ड हिम. अब देखिए प्लास्टर क्या होता है, कि एक ड्रेसिंग पट्टी होती है जिस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोट लगाई जाती है, तो हम उसको प्लास्टर कहते हैं. तो प्लास्टर एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, तो यहाँ प्लास्टर के साथ ईडी लगा दिया गया. तो प्लास्टर्ड हिम हिज आर्म, उसके हाथ पे प्लास्टर बांध दिया. द डॉक्टर सेड दैट हिज आर्म हैड बीन फ्रैक्चर्ड, उनका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था. ही ऑल्सो सेड दैट ही वुड बी ऑल राइट इन अबाउट 2 weeks, और ये भी कहा कि वो 2 सप्ताह में ठीक हो जाएगा. आई वेंट टू द हाउस, मैं गया किसके घर, ऑफ मुकेश. आई इन्फॉर्म देम अबाउट मुकेश, और फिर हमने घर वालों को मुकेश के बारे में बताया. दे थैंक मी. अब देखिए कई बार तो हमें डर लगता है कि कहीं कोई चोट लगी है उसके बारे में मैं घर जाके बताऊंगा तो घर वाले मुझे डांटेंगे, और हो सके हाँ आंटी जी जो भी आपकी लगती हो, ताई जी हो, वो मुझ पे ब्लेम भी करे कि तूने ऐसा क्यों किया. पर इतना डर नहीं रखना चाहिए. और जहाँ तक मैं मानता हूँ यदि ऐसी कुछ इंजरीज हो जाए तो आप घर पे ज़रूर इन्फॉर्म करें. वाइल प्लेइंग, खेलते समय कुछ भी ऐसा हो जाए, सो ट्राई टू टेल टू द पेरेंट्स ऑफ द पर्सन दोज हु वर प्लेइंग, बोथ ऑफ द प्लेइंग, एंड यू टू क्लियर द सिचुएशन ऑल्सो.
ताकि उनके कभी भी कोई क्वारल आगे चल करके नहीं हो। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। तो जब जब हम किसी की बात को सुनते हैं तो सबसे पहले होता है लिसनिंग और उसके बाद में होता है स्पीकिंग। तो हमें दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। किन किन चीज़ों का? लिसनिंग का एंड स्पीकिंग का। उसके बाद में आएगी रीडिंग एंड राइटिंग। तो अभी हम लिसनिंग स्पीकिंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं? रीडिंग भी कर रहे हैं। और यदि आपके पास टाइम होता है तो घर पे आप इन चीज़ों को राइट भी करें। राइट योर ब्रेन, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, व्हाट इज कुकिंग इन योर ब्रेन एंड व्हाट इज बॉइलिंग इन योर ब्रेन, यू हैव टू राइट दैट एंड स्टार्ट राइटिंग। जैसे आप लिखने की आदत बना लेंगे, धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। अब देखिए, इसको आप स्पीड से भी पढ़ सकते हैं। वी प्ले इवनिंग गेम्स इन आवर स्कूल रेगुलरली। One evening, we were playing football. The other team scored a goal. We were trying hard to score a goal. Our playmate Mukesh was running very fast after the football. His leg slipped. He fell down and cried loudly with pain. He had hurt his arm. We stopped playing. I rubbed his arm. I took him to hospital on my motorcycle. The doctor came. He examined him carefully. The doctor gave him a tablet. Then the doctor plastered his arm. The doctor said that his arm had been fractured. He also said that he would be alright in about 2 weeks. Then I went to the house of Mukesh. I informed them about Mukesh. Then they thanked me. So this is how you can improve your fluency, reading and understanding. Everything will be improved. So you have to try your level best. Am I right? Yes, you are absolutely right. तो चले, रीडिंग एक्सरसाइज तो अपनी पूरी हुई। इसके बाद चलते हैं अगले सेगमेंट पे, और अगला सेगमेंट अपना है वही लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आर यू एक्वेंटेड विद चीफ मिनिस्टर? क्या आप चीफ मिनिस्टर को जानते हैं? देखिए, एक्वेंटेड विद का मतलब होता है परिचय होना। सो आर यू एक्वेंटेड? आर यू एक्वेंटेड विद? तो आप यदि किससे परिचित है तो आप बोल सकते हैं आई एम एक्वेंटेड विद। आर यू एक्वेंटेड विद चीफ मिनिस्टर? क्या आप चीफ मिनिस्टर को जानते हैं? आर यू एक्वेंटेड विद मैनेजर? क्या आप मैनेजर को जानते हैं या आप मैनेजर से परिचित है? आर यू एक्वेंटेड विद कलेक्टर? हमारे कलेक्टर कौन है, क्या आप उनको जानते हैं? आर यू एक्वेंटेड विद द रोड्स ऑफ जयपुर? क्या आप जयपुर की सड़कें जानते हैं? आर यू एक्वेंटेड विद द रोड्स ऑफ महाराष्ट्र, जयपुर? आर यू एक्वेंटेड विद द रोड ऑफ सूरत? तो आप जहाँ से भी किसी को पूछना चाहते हैं कि क्या आप सड़कों के बारे में जानते हैं, तो कहेंगे आर यू एक्वेंटेड विद। एक्वेंटेड विद का मतलब होता है परिचित होना। सो बोलेंगे आर यू एक्वेंटेड विद चीफ मिनिस्टर? आर यू एक्वेंटेड विद मैनेजर? आर यू एक्वेंटेड विद कलेक्टर? तो जब जब किसी के बारे में पूछना हो तो आप मेरे लिए भी पूछ सकते हैं आर यू एक्वेंटेड विद कुलदीप सर? यस, इसी तरीके से एक दो बार फिर से पूछ लीजिए आर यू एक्वेंटेड विद चीफ मिनिस्टर? यस, आई एम एक्वेंटेड विद चीफ मिनिस्टर। तो करना क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सो आपको बोलना है आर यू एक्वेंटेड विद चीफ मिनिस्टर? क्या आप यहाँ की सड़कों के बारे में जानते हैं? आर यू एक्वेंटेड विद द रोड्स? आर यू एक्वेंटेड विद द रोड्स? क्या आप जयपुर की सड़कों के बारे में जानते हैं? आर यू एक्वेंटेड विद द रोड्स ऑफ जयपुर? वेज आर कन्फ्यूजिंग, मुझे तो बड़े कन्फ्यूजिंग लगते हैं। आप यहाँ से निकलो, द रोड गोज स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट एंड देयर इज द एंड ऑफ द रोड। सो प्ले सेफ, क्या कहते हैं? प्ले सेफ। इस तरीके की सड़कें यदि आती हो तो आप ज़रूर ही ध्यान रखें सड़कों का, बिकॉज द रोड एंड्स हियर, गो स्लो, वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। तो हम जब जब ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे साइन बोर्ड देखते हैं, तो ज़रूर ही आपको ध्यान रखना होता है। आर यू गेटिंग मी? यस, आई एम गेटिंग यू। देर इज़ अ ट्रांसफार्मर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देर इज़ अ ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर है मेरे घर के सामने। तो यदि आपके घर के सामने भी कोई ट्रांसफार्मर है तो आप बता सकते हैं। यदि कोई पेड़ है तो बता सकते हैं देर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देर इज़ अ मैंगो ट्री, आम का पेड़ है। या फिर कह सकते हैं देर इज़ अ बेनियन ट्री, एक बरगद का पेड़ है। देर इज़ अ बेनियन ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देर इज़ अ ट्रांसफार्मर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सो दिस इज़ अ लैंडमार्क। ओह, इट्स अ लैंडमार्क। लैंडमार्क ऐसी चीज़ें होती है जिनको सब जानते हैं, वेल नोन प्लेसेज। तो वेल नोन प्लेसेज यदि हो तो आप भी बता सकते हैं दिस इज़ अ वेल नोन लैंडमार्क। क्या कहेंगे? दिस इज़ अ वेल नोन लैंडमार्क। कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रांसफार्मर हो सकता है, ट्री हो सकता है। तो यदि आपके घर के सामने कोई अच्छा सा पेड़ हो तो आप कह सकते हैं दिस इज़ अ वेल नोन लैंडमार्क। सो हाउ मेनी लैंडमार्क्स आर देयर? यहाँ हम कह सकते हैं इन सीकर, ड्रीम टच एकेडमी इज़ अ वेल नोन लैंडमार्क इन सीकर। यदि सीकर की और जगह की हम बातें करें तो हम कह सकते हैं तापड़िया गार्डन इज़ अ वेल नोन लैंडमार्क इन सीकर।
जयपुर की बात करें तो सिंधी कैंप इज वेल नोन लैंडमार्क, गोपालपुरा इज वेल नोन लैंडमार्क, लाल कोठी इज वेल नोन लैंडमार्क। तो जो जो चीज़ें पॉपुलर हो, फेमस हो, उन चीज़ों को हम बोलते हैं लैंडमार्क्स। तो जब जब हम खो जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ चले जाना चाहिए? लैंडमार्क्स पे चले जाना चाहिए। जहाँ भी अच्छे लैंडमार्क्स होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हो। यदि आप किसी लैंडमार्क पे पहुँच जाते हो तो आप खोए हुए नहीं रहते हो, यू आर नॉट लॉस्ट। मैं तो जब जब खो जाता हूँ तो क्या कहता हूँ? आई एम लॉस्ट, और लॉस्ट आई एम लॉस्ट। तो आपको यदि खोने का डर रहता है तो कहाँ जाना चाहिए? गो टू द फेमस लैंडमार्क। क्या कह सकते हैं? गो टू द वेल नोन लैंडमार्क। तो एक सेंटेंस बोल दीजिए, तापड़िया गार्डन इज अ वेल नोन लैंडमार्क, या जैन टेम्पल इज अ वेल नोन लैंडमार्क, नेहरू पार्क इज द वेल नोन लैंडमार्क। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। सो वेज आर कंफ्यूजिंग। वेज की बात करें, रास्ते, वेज आर, हाँ, WAY और उसके साथ लगा दिया S, तो ये बन गया वेज। जैसे गो था, यदि गो के साथ आपने लगा दिया ES तो बन गया गोज। तो इसी तरीके से आपने वे के साथ क्या लगा दिया? एश, तो बन गया वेज। तो मैं कह रहा हूँ रास्ते, वेज आर कन्फ्यूजिंग। क्या कह सकते हो? वेज आर कन्फ्यूजिंग एट सीकर। हाँ, सीकर के रास्ते बड़े ही कन्फ्यूजिंग है। एक बार आप यहाँ से निकलो, आगे चल के रास्ता बंद होता है। वेज आर कन्फ्यूजिंग एट सीकर। जयपुर में जरूर रास्ते कैसे मिलते हैं? ऐसे क्रॉस करते हैं। सो इन क्रॉसेज को हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल। देर इज ए सर्कल। तो गोपालपुरा बाईपास इज ए वेल नोन लैंडमार्क। ऐसे ही गुजर की थड़ी इज ए वेल नोन लैंडमार्क। इन सीकर सुभाष चौक इज ए वेल नोन लैंडमार्क। आपकी सिटी में कौन सी चीज़ वेल नोन लैंडमार्क है? पूजा? हाँ, दोनों पूजा ही बता दो। एक रेनवाल के लिए बता दो, एक उड़ीसा के लिए बताओ। और अभी बॉम्बे में रह रहे हो तो बॉम्बे के लिए बताओ। वेल नोन लैंडमार्क कौन कौन से हैं? डीके आप बताओ, वेल नोन लैंडमार्क कौन सा है? विच इज़ द वेल नोन लैंडमार्क? अभी जैसे मेरे घर के सामने कोई ट्री है, देर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यदि ट्री है तो नो प्रॉब्लम, देर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। आई गेट लॉस्ट, मैं कभी कभी खो जाता हूँ। डू यू गेट लॉस्ट? येस, आई एम लोस्ट। आई हैव लोस्ट मैनी टाइम, मैं तो कई बार खो चुका हूँ। जब जब जाता हूँ तभी वहीं खो जाता हूँ। आई एम कन्फ्यूज, क्योंकि वेज आर कन्फ्यूजिंग। देखो, दो बातें बोल रहा हूँ। एक तो होता है कन्फ्यूजिंग, क्या होगा? कन्फ्यूजिंग। लिख देते हैं, CONFUSING। ये तो हो गया कन्फ्यूजिंग। एक होता है कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड, तो ये आपकी स्थिति है। आई एम कन्फ्यूज्ड, क्या कहेंगे? आई एम कन्फ्यूज्ड। और जो चीज़ आपको कन्फ्यूज कर रही है वो होती है कन्फ्यूजिंग। क्या होगी? कन्फ्यूजिंग। तो आप जब कोई चीज़ को कन्फ्यूज कर रहे हैं, यू आर कन्फ्यूजिंग। और आप खुद ही कन्फ्यूज हो रहे हैं, आई एम कन्फ्यूज्ड। क्या कहेंगे? आई एम कन्फ्यूज्ड, ही इज़ कन्फ्यूज्ड। हाँ, इसके लिए भी कह सकते हैं, सी इज़ कन्फ्यूज्ड, यू आर कन्फ्यूज्ड। अब जो आदमी कन्फ्यूज करता है वो होगा कन्फ्यूजिंग। यू आर वेरी कन्फ्यूजिंग। जैसे यू आर सो फनी, यू आर सो इंटरेस्टिंग। तो जो चीज़ रुचिकर होगी, कन्फ्यूज कर होगी, वो होगी कन्फ्यूजिंग। और जो कन्फ्यूज हो चुका होगा, आई एम कन्फ्यूज्ड, क्या कहेंगे? आई एम कन्फ्यूज्ड। आर यू कन्फ्यूज्ड? यस, आई एम कन्फ्यूज्ड। मेरे पास एक आइडिया है, तो कह देते हैं आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक बॉटल है, आई हैव अ बॉटल। मेरे पास लैंडमार्क है, आई हैव अ लैंडमार्क। डू यू हैव अ फेमस लैंडमार्क? यस, देर इज अ ट्रांसफार्मर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। वेज आर कन्फ्यूजिंग, बड़े कन्फ्यूजिंग रास्ते हैं। इधर से जाता हूँ वहाँ कन्फ्यूज जाता हूँ, उधर जाता हूँ वहाँ कन्फ्यूज जाता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, टेक टू द लेफ्ट। या फिर आप बाएं तरफ चले जाइए, वॉक केयरफुली, प्ले सेफ, सी हियर एंड देयर, लेफ्ट राइट, एंड आफ्टर दैट गो स्ट्रेट एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। बहुत बार कहता हूँ, अ पर्सन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। क्या कहता हूँ? अ पर्सन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। आदमी को जिम्मेदार तो होना चाहिए। आर यू रिस्पॉन्सिबल? यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल। यदि मैं ड्यूटी करता हूँ, आई एम ड्यूटीफुल। क्या कहेंगे? आई एम ड्यूटीफुल। आर यू रिस्पॉन्सिबल? यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल तो होना ही चाहिए। जो रिस्पॉन्स देता है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। अब रिस्पॉन्स किस चीज़ का? हाँ, किसी भी चीज़ का। जैसे अभी आपको कहा कि लाइक करना है तो आपको लाइक करना है, और आपको लाइक नहीं करना है तो आप कर सकते हैं आई डिसलाइक। क्या करेंगे? आई डिसलाइक इट।
I like it. Do you like it? Yes, I like it. A person must be responsible. Are you responsible? Yes, I am responsible. Are you dutiful? Are you beautiful? Are you okay? Yes, I am okay. I am okay. Are you okay? Yes, I am okay. Are you acquainted with the roads of Jaipur? क्या आप जयपुर की सड़कों के बारे में जानते हैं? Are you acquainted with the chief minister? क्या आप चीफ मिनिस्टर को जानते हैं? Are you acquainted with the manager? क्या आप मैनेजर को जानते हैं? Are you acquainted with the collector? Yes, I am acquainted. यदि हैं तो क्या कहेंगे? Yes. आपको जवाब देना है Yes, I am. और नहीं जानते हैं सॉरी आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एक्वेंटेड। तो जब जब आप जवाब नेगेटिव देते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड। क्या बोलेंगे? आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एक्वेंटेड विद द रोड्स ऑफ जयपुर। तो एक बार फ्लुएंसी के लिए आप बोल करके देखें आई एम नॉट एक्वेंटेड, और एक्वेंटेड है तो क्या कहेंगे? येस आई एम एक्वेंटेड विद द चीफ मिनिस्टर, कि मैं चीफ मिनिस्टर को जानता हूँ। आई एम एक्वेंटेड विद द रोड्स। एंड 2 मिनट का मौन रखेंगे। देर विल बी ए साइलेंस फॉर द सोल्जर्स। जो पबजी खेलने वाले सोल्जर्स थे आज उनकी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि पबजी बैन हो चुका है। तो उन लोगों के लिए आप खड़े होकर के 2 मिनट का मौन रखेंगे। और कोई डीजे वाले आसपास है तो उनको बुला लो क्योंकि सबको श्रद्धांजलि देनी है एक साथ ही, तो उनके लिए तो सैल्यूट बनता है। तो आप बस लगे रहिए और अब पबजी छोड़ दीजिए और साथ साथ क्या करना स्टार्ट करें, चैनल देखना स्टार्ट करें। जिनको पसंद आ रहा है लाइक और कमेंट करते जाएं। देर इज़ ए ट्रांसफार्मर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यदि आपके घर के सामने ट्रांसफार्मर है तो क्या कहेंगे? देर इज़ ए ट्रांसफार्मर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। यदि आपके घर के सामने गाय है तो क्या कहेंगे? देर इज़ ए काउ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ओह, इट्स ए लैंडमार्क। तो ये तो क्या हो गया? लैंडमार्क हो गया। तो जब भी हम किसी चीज़ को पहचानते हैं, किसी के घर को पहचानते हैं, तो किस चीज़ से पहचानते हैं? वेल नॉन लैंडमार्क से। तो वहाँ एक फेमस लैंडमार्क होना जरूरी है। यदि कोई लैंडमार्क नहीं है तो लैंडमार्क बनाना पड़ेगा। इन माई कॉलोनी हाउसेज आर नंबर्ड। मेरी कॉलोनी में तो घरों पे नंबर लिखे हुए हैं, पर कभी कभी एक जैसे घर देख करके मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड। क्या कहते हैं? आई एम कन्फ्यूज्ड। यू आर कन्फ्यूजिंग, कि आप कन्फ्यूज करते हो इधर जाना है या इधर जाना है, दिस वे और दैट वे। दिस वे इस रास्ते पे एंड दैट वे उस रास्ते पे। आई एम कन्फ्यूज्ड। आर यू कन्फ्यूज्ड? यस आई एम कन्फ्यूज्ड। माई हाउसेज आर नंबर्ड, या फिर हाउसेज आर नंबर्ड इन माई कॉलोनी। मेरी कॉलोनी में तो घरों पे नंबर लिखे हुए हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू बी कन्फ्यूज्ड। आर यू कन्फ्यूज्ड? यस, रोड्स आर कन्फ्यूजिंग इन सीकर। सीकर की सड़कें इतनी कन्फ्यूजिंग है कि एक सड़क से निकलो दूसरी सड़क से निकलो आगे रास्ता बंद। हाँ, स्कूटी वालों का तो पीछा बिल्कुल मत करो क्योंकि पता नहीं किस घर के सामने जाकर के सड़क बंद हो जाए और लेने के देने पड़ जाए। टेबल्स वर टर्न ऑन देम, कि उनको तो लेने के देने पड़ गए। आर यू एक्वेंटेड विद द रोड्स ऑफ जयपुर? क्या आप जयपुर की सड़कों के बारे में जानते हैं? आर यू एक्वेंटेड विद द चीफ मिनिस्टर? क्या आप चीफ मिनिस्टर के बारे में जानते हैं या उनसे परिचित हैं? आर यू एक्वेंटेड विद द मैनेजर ऑफ SBI? SBI का तो नाम है, मतलब नेम इज इनफ। जैसे ही नाम स्टार्ट होता है काम भूल ही जाओ। यस, एम आई राइट? Yes, sir, it happened with me long, long ago. Once upon a time, it happened. It happened with me. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. Did you? Yes, it happened. तो ये ऐसा घटित हुआ था. I am before you. मैं आपसे पहले हूँ. I am before you. तो आप जब भी सामने होते हैं तो कह सकते हैं I am before you. चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं राम और श्याम की बातों के बारे में। दोनों दोस्त कई दिनों से एक दूसरे दोस्त से मिले हैं। तो राम बोलता है हाउ आर यू डूइंग मैट? मेट अभी बताया था ना, क्लासमेट हो या फिर रूममेट हो या फिर स्पोर्ट्स मेट हो, प्ले मेट हो, तो जो आपके साथी होते हैं उनको हम मेट कहते हैं। और आजकल शॉर्ट में ब्रो कहने की भी आदत हो गई है लोगों की। हाउ आर यू ब्रो? जब भी हम मिलेंगे तो क्या कहेंगे? हाउ आर यू ब्रो? श्याम कहता है डूइंग गुड। यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये भी कह सकते हैं, या फिर यू टेल मी, आप बताइए। डूइंग वेल, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। डूइंग गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब जब हम मिलते हैं दोस्तों से तो इसी तरह से पूछेंगे हाउ आर यू डूइंग मैट या हाउ आर यू डूइंग ब्रो। हाउ आर यू ब्रो? तो जवाब होगा डूइंग गुड। यू टेल मी, आप बताइए अपने बारे में। ऑल गुड। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? सब कुछ ठीक है, बताइए कैसा चल रहा है। तो राम श्याम से पूछ ही लेता है कि कैसा चल रहा है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि अभी क्या चल रहा है। श्याम कहता है थोड़ा सा उदास होकर नथिंग स्पेशल। ज़्यादातर ज़िंदगी में स्पेशल है ही नहीं, अभी तो कोरोना चल रहा है। लोग कई दिनों से तो बोल रहे थे फॉग चल रहा है, अब फॉग का जादू गया और कोरोना का खौफ चालू है।
तो हम कह सकते हैं नथिंग इज ऑफिशियल, सॉरी नथिंग इज स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं चल रहा है। जस्ट इनटू फादर्स बिजनेस कह रहा है कि बस पापा का काम कर रहा हूँ, पापा के जॉब में बिजी हूँ। जस्ट इनटू फादर्स बिजनेस। आई एम वर्किंग हार्ड फ्रॉम माई एंड, रेस्ट ऑन गॉड। अब जब आदमी अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करता है तो कह सकता है आई एम वर्किंग हार्ड, मैं तो अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, फ्रॉम माई एंड, मेरी साइड से, फ्रॉम माई एंड, रेस्ट ऑन गॉड, बाकी तो ईश्वर पे है। इंडिया में ये सब कुछ है कि कुछ भी कर लो, भगवान की मर्जी तो चलती है। इजंट इट? यस इट इज़। तो भगवान तो खुद कहते हैं कि मेरे भरोसे मत बैठ, मुझ पे भरोसा रख। तो काम तो खुद को ही करना है, तो आप अपना काम खुद करोगे, ये सारे स्पेलिंग सारे वर्ड मीनिंग याद करोगे और याद करके मेरे साथ साथ बोलोगे। तो क्या कह रहे हैं? नथिंग स्पेशल, जस्ट इनटू फादर्स बिजनेस, केवल पापा के बिजनेस में। यहाँ एपिस्ट्रॉफी एक ही लगेगी भैया, जस्ट इनटू फादर्स बिजनेस। आई एम वर्किंग हार्ड फ्रॉम माई एंड, मेरी तरफ से तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। रेस्ट ऑन गॉड, बाकी ईश्वर पे है। तो जब जब आप कोई चीज़ ईश्वर पे छोड़ देते हो तो क्या कहते हो? रेस्ट ऑन गॉड, रेस्ट ऑन यू, बाकी तो आप पे है। रेस्ट ऑन अस, बाकी चीज़ें तो हम पे हैं, पापा मम्मी तो जो करेंगे करेंगे। राम फिर रिप्लाई करता है, यू नेवर टोल्ड मी अबाउट योर डैड्स बिजनेस, क्या कभी आपने मुझे अपने पापा के बिजनेस के बारे में बताया नहीं? नेवर गॉट अ चांस इन फैक्ट, तो वास्तव में तो चांस कभी मिला ही नहीं कि हमने बिजनेस वगैरह की या पापा के बिजनेस की बात कभी करी ही नहीं। तो हम कहते हैं नेवर गॉट अ चांस इन फैक्ट। एनीवेज, क्या कह रहे हैं? एनीवेज हाउ इज़ योर जॉब, चलिए कोई बात नहीं है, जब भी हम कहते हैं एनीवेज रहने दीजिए, फिर भी हाउ इज़ योर जॉब, आपका जॉब कैसा चल रहा है? तो कह रहे हैं जॉब इज़ गोइंग वेल, जॉब तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही शानदार चल रहा है। और ज़्यादातर लोगों की आदत भी होती है जॉब के बारे में हमेशा अच्छा ही बताते हैं, चाहे कितनी टेंशन चल रही हो। जॉब इज़ गोइंग वेल, आई एम अ मैनेजर नाउ, आजकल तो मैं मैनेजर भी बन गया हूँ। आई एम अ मैनेजर नाउ। मैरिज इज़ फाइनलाइज्ड वेल, मैरिज इज़ फाइनलाइज्ड एज वेल, और साथ में शादी भी फाइनल हो गई है। तो यहाँ तो जॉब और यदि मैरिज भी फाइनलाइज हो जाए तो आइश ऑन द केक, क्या कह सकते हैं? आइश ऑन द केक, सोना और सुगंध दोनों हो गए, या फिर सोने पे सुहागा हो गया। तो क्या कह रहा है? आई एम अ मैनेजर नाउ, मैरिज इज़ फाइनलाइज्ड। हाँ, मैनेजर बनते ही ये चीज़ तो होनी है, एंगेजमेंट हो जाती है, मार्केट मैरिज मार्केट में वैल्यू बढ़ने लग जाती है, लोग देखने आने लग जाते हैं। आपके भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या? हाँ, जिन जिनके एक्सपीरियंस हुए हैं वो ज़रूर लाइक और कमेंट करें, और बाकी पोगो देखें। राम, जॉब इज़ गोइंग वेल, आई एम मैनेजर नाउ, मैरिज इज़ फाइनलाइज्ड एज वेल, कि शादी भी फाइनलाइज हो चुकी है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जब ऐसे लोगों के लिए ऐसी बातें सुनते हैं कि इसकी और शादी हो जाए तो ज़रूर आश्चर्य होता। तो बस शाम के साथ भी ऐसा ही हुआ, शाम वॉज टोटली शॉक्ड, शाम को भी शौक लगा, एंड आस्क्ड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप क्या बात कर रहे हो? आर यू किडिंग मी, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? किडिंग, हाँ, जब छुटपुट मजाक करते हैं तो बोलते हैं जस्ट किडिंग, हाँ मजाक कर रहा हूँ। जस्ट जॉकिंग, मजाक कर रहा हूँ। तो ये पूछ रहा आर यू किडिंग मी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? राम, आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस, जब हम मजाक नहीं करते हैं और रियल में ही सीरियस होते हैं तो जवाब सेम ऐसा ही होता है, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट जॉकिंग, आई एम नॉट कटिंग जॉक्स, आई एम सीरियस, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो आपको क्या करना होगा? बस मेरे साथ साथ बोलना होगा, आई एम सीरियस। तो जब आप अपनी बात पे पूरे पूरे पक्के हैं, सीरियस है, तो कह सकते हैं आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। व्हेन इज दैट, कब की है, क्या कब की है? दीपावली कब की है? हाँ, गब्बर खड़ा होकर पूछता है ना, इस बार होली कब की है? सो व्हेन इज दैट, कब की है? अब राम कह रहा है डेट इज़ नॉट डिसाइडेड येट, कि अभी तो डेट डिसाइड नहीं हुई है, डेट इज़ नॉट डिसाइडेड येट। तो जब डेट डिसाइड नहीं होती है तो हम यही कहते हैं डेट इज़ नॉट फिक्स्ड, या फिर बोल सकते हैं डेट इज़ नॉट डिसाइडेड येट। एक्साइटमेंट तो रहता ही है, सभी को होता है कि डेट डिसाइड हो जाए, पर ये फिर बड़ों पे आकर के बात रुक जाती है। तो रेस्ट ऑन एल्डर्स, सो डेट इज़ नॉट डिसाइडेड येट। तो जब भी डेट डिसाइड नहीं होती है तो कहते हैं डेट इज़ नॉट डिसाइडेड येट। एंगेजमेंट की भी डेट हो सकती है, या मैरिज की भी डेट हो सकती है, और कई लोगों के तो मैरिज की डेट फिक्स होने के बाद तो फेरों की भी डेट फिक्स होना ज़रूरी है। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे पास एक आइडिया है, चलो बात करते हैं। विच वन इज़ योर फेवरेट, सिटी लाइफ और विलेज लाइफ? आपको कौन सा अच्छा लगता है? बताइए फटाफट, कमेंट करिए। विलेज लाइफ और सिटी लाइफ? जिन जिनको विलेजेस अच्छे लगने लगे हैं, जैसे दिवेश इनमें सबसे पहला नंबर है,
सिटी में जितने मजे मारने थे मार लिए, अब कह रहा है कि विलेज लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। आई प्रेफर विलेज लाइफ। वेरी गुड, जो जो विलेज लाइफ प्रेफर करते हैं। आई प्रेफर सिटी लाइफ। विलेज में क्या रखा है यार, कुछ नहीं होता, न गाड़ी है, न घोड़े हैं, न कोई फास्ट लाइफ है, बस वही रटाई जिंदगी है। आई लाइफ सिटी। माई फेवरेट लाइफ इज सिटी लाइफ। सो व्हाट डू यू प्रेफर, आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हो, विलेज लाइफ और सिटी लाइफ? फटाफट। लाइक, हाँ, थम्स अप। विलेज लिख करके थम्स अप, या फिर सिटी लिख करके थम्स अप। विच वन इज योर फेवरेट? ग्रेट ग्रेट, गुड, कीप इट अप। What are you talking about? Are you kidding me? I'm not kidding. I'm serious. When is that? कब की है? That is not decided yet. However, most probably by December. जब हम फ्यूचर की बातें करते हैं कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है तो उससे पहले हम बाय लगा देते हैं। तो यहाँ ये भी कहता है that is not decided yet. However, बोल के देखे, however hard I try, but I can't help it. However hard I try, however hard I try. देखिए कमेंट में लिखो however hard I try, but I can't help it. Okay. However, most probably, probability जहाँ होती है संभावना होती है, तो most probably संभवतया by December, कि दिसंबर तक तो हो जाएगा, पर ये कोरोना ने करने दिया तो, वरना तो फिर से वेट। हाँ, आपकी सोच को भी सल्यूट। आई लाइक इट। फिर भी अभी ओपन है, शादी आप कर सकते हैं, पर 100 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग मत करिए। पहले 50 था, 50 से 100 लोगों की गैदरिंग हो गई है। लॉकडाउन अनलॉक 4 चल रहा है। स्कूल्स को अभी भी नहीं खोला है क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी शादियाँ हैं या फिर अपने लीडर्स की मीटिंग्स है। तो लीडर्स की जो मीटिंग्स होनी है उनको ज़रूर इन्होंने आराम से खोल रखा है। बहुत नाइंसाफ़ी है। जब जब ऐसा लगे तो बोलते हैं इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस। इट इज़ अ ग्रेट इनजस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय, और नाइंसाफ़ी अन्याय, जिसको हम कहते हैं इनजस्टिस। आई एन लग जाएगा, इन इनजस्टिस। इट्स अ ग्रेट इनजस्टिस। बहुत नाइंसाफ़ी है। हाउएवर, डेट तो अभी डिसाइड नहीं है, फिर भी मोस्ट प्रोबेबली बाय दिसंबर, कि बाय दिसंबर तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा तो कर लेंगे। तो शादी में आना मत भूलना। आपको तो याद होगा जब हम लेटर लिखते थे कि यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनफॉर्मल लेटर। कई बार हम फॉर्मल लेटर भी लिखते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं इनविटेशन, और इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो पर्सनल लेटर्स होते हैं। तो आपको पर्सनल लेटर्स लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। जो 11th और 12th क्लास में है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है इस बार तैयारी करने का और मेरिट में आने का। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई विल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। शैल वी एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज? क्या इतने शानदार दिनों को हम भूलेंगे जब हमें स्कूल जाना होता था? गोन आर द डेज। अब ना स्कूल है ना कॉलेज है, बस घर और ऑनलाइन क्लासेस। सो स्कूल घर पे आ जाएगा। इट इज़ रियली चार्मिंग। आई नेवर न्यू, मुझे तो कभी भरोसा नहीं था, बाय गॉड और बाय यू। चलो आप में से कोई एक आधा कम ज़्यादा भी हो गया तो कोई डर की बात नहीं है, पर गॉड कम हो गए तो यू आर अ लायर। नेक्स्ट। ओ ओ, डोंट वरी गाइस, लेट मी चेक ट्री। वेल डन। चलिए। शाम, वाओ। जैसे ही पता लगा कि शादी हो गई है तो आपको तो सबसे पहले पता था ही ना। एटलीस्ट आई विल गेट अ चांस टू डांस। हाँ, और तो कुछ नहीं, पर कम से कम नाचने का मौका तो मिलेगा। एटलीस्ट, कम से कम, आई विल गेट अ चांस टू डांस। दिसंबर में शादी होगी तो नाचेंगे ज़रूर। वाओ, तो जब ऐसी सरप्राइजिंग न्यूज़ आती है तो मुंह से अनायास निकल ही जाता है, वाओ व्हाट अ सरप्राइज। एटलीस्ट आई विल गेट अ चांस टू डांस। तो डांस करने का चांस तो मिलेगा ही। जब गांव में हमारी बिजली लगी थी ना तो सारे कुत्ते खुश हो गए थे। वाई? क्योंकि कुत्तों को पता था बिजली के लिए पोल तो लगेंगे ना, तार तो पता नहीं कब लगेंगे। तो ऐसे ही जब शादी की बात आती है तो जो नाचने वाले हैं ना वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो लिखा है वाओ एटलीस्ट आई विल गेट अ चांस टू डांस। तो आपको भी क्या बोलना है इस सेंटेंस को? आई गेट, आई विल, आई गेट अ चांस टू डांस।
Wow, at least I'll get a chance to dance. Dance is fine, but you will have to go with me for shopping. हाँ डांस तो ठीक है, डांस इज़ फाइन. जब कोई चीज़ ठीक होती है ना, यस इट इज़ फाइन, तो ये भी कह रहा है डांस इज़ फाइन, वो बात तो ठीक है, बट यू विल हैव टू गो विथ मी फॉर शॉपिंग. पर तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना ही पड़ेगा. यही तो होता है ना, एक दोस्त ही दोस्त के काम में आ सकता है. सो एटलीस्ट, थैंक यू वेरी मच. एटलीस्ट डांस इज़ फाइन बट यू विल हैव टू गो. देखिए यहाँ हमने यू विल भी आया और हैव टू गो, तुम्हें चलना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू गो विथ मी फॉर शॉपिंग. श्याम बोलता है इट्स ओके, डू कॉल मी. डू कॉल मी, मुझे कॉल कर देना जिस दिन भी शॉपिंग के लिए चलना हो. सो कह रहा है डू कॉल मी. ओके, हाँ ये हिदायत दे रहा है कि कॉल तो कर देना. ओके, जब जब हम कंफर्म करवा लेते हैं तो एक ओके फिर और जड़ देते हैं लास्ट में. तो कह रहा है इट्स ओके, ठीक है, डू कॉल मी, पर मुझे कॉल जरूर करना. ओके, यस कंफर्म करवा रहा है. वेल लेट्स गो नाउ. चलो ठीक है, अब तो चलते हैं. इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है. जब अंधेरा हो रहा है तो हम कह देते हैं इट्स गेटिंग डार्क. लिसन, सुनो तो. टुमारो आई एम कमिंग नियर बाई योर प्लेस. कल मैं तुम्हारे घर के पास से आ रहा हूँ, या फिर तुम्हारे घर के पास आ रहा हूँ. योर प्लेस, जहाँ हम रहते हैं. तो ये भी कह रहा है, राम कह रहा है लिसन सुनो, टुमारो आई एम कमिंग नियर बाई योर प्लेस, तुम्हारे घर के पास ही आ रहा हूँ. इफ़ यू से, यदि तुम कहो तो. वी कैन हैव अ पार्टी, वी कैन हैव अ पार्टी, कल एक पार्टी रख लें छोटी सी. इट इज़ एनीवेज, इट हैज़ एनीवेज बीन मैनी डेज, या फिर एनीवेज को एक बार हटा करके देखें तो हम कह सकते हैं इट हैज़ बीन मैनी डेज, बहुत दिन हो चुके हैं. और ऐसे भी जब भी कहते हैं ना कि यूँ भी बहुत सारे दिन हो चुके हैं, इट हैज़ बीन मैनी डेज, तो आप आराम से कह सकते हैं इफ़ यू से, यदि आप कहो तो. इफ़ यू से वी कैन हैव अ पार्टी, तो एक पार्टी रख लेते हैं. इट हैज़ बीन मैनी डेज, बहुत सारे दिन हो चुके हैं. और पार्टी लेने के लिए कौन तैयार नहीं है, तो श्याम बड़े प्यार से कह रहा है एनी टाइम मेट, कभी भी कह देना दोस्त, तैयार है पार्टी लेने के लिए. ओके, आई विल कॉल यू अप, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा. गुड नाइट. गुड नाइट मेट, टेक केयर. तो जब भी हम लास्ट विदा लेते हैं तो कह देते हैं गुड नाइट, और साथ ही साथ कह रहे हैं टेक केयर. तो टेक केयर ज़रूर आपको कह देना है. सो इट वॉज अ सॉन्ग्स डे yesterday and I think you sang lovely songs yesterday, and today you have to sing, and you did not send me any song on my WhatsApp. It's not fair, it's injustice. तो इस तरीके से आपके पास देखें तो आज हमने एक रोल प्ले को डिस्कस किया है. इस रोल प्ले को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, हो सके अपने घर पे ब्रदर एंड सिस्टर हो तो उनके साथ आप इसको रिकॉर्ड करेंगे एंड ट्राई टू सेंड इट. And there are few students who are sending me videos also, so I will include those videos in next videos also, and show you that how you are preparing. On Facebook you can watch all the videos those had been sent by students, and they're regularly sending me such beautiful videos, but my videos are so lengthy, that's why I cannot include right now. In B level there will be the short length videos, that time we will enjoy these videos. So जब जब लोगों से मिलते हैं तो कह देते हैं हाय, और जब जाते हैं तो कहते हैं बाय. मिलके खुशी होती है तो कहते हैं नाइस टू मीट यू, और सामने वाला भी जवाब देता है नाइस टू मीट यू. सो हाउ आर यू बडी, या फिर कह सकते हैं व्हाट्सअप बडी, व्हाट्सअप मैट, व्हाट्स गोइंग ऑन. तो ये दोनों दोस्त मिलते हैं राम और श्याम. तो नाम देख करके घबरा मत जाना, हमारे यहाँ ज़्यादातर राम और श्याम ही होते हैं. पीटर और हैरी ये थोड़े से दूर की बातें हैं अपने लिए, तो वहाँ हम नहीं पहुँचेंगे और चलेंगे. लॉकडाउन खुलते ही हम वहाँ भी चल पड़ेंगे. इज़न्ट इट? यस इट इज़. चलते हैं, लेट्स गो. क्या बोलेंगे? लेट्स गो. एक चांस और लेते हैं. लेट्स टेक अनदर चांस. आर यू रेडी? Yes, I am ready. Can you speak in English? Yes, I can speak in English. Can you read? Yes, I can read. So let's match. Set your watch. अपनी घड़ी सेट कर लीजिए और टाइमर लगा दीजिए. We play evening games in our school regularly. One evening we were playing football. The other team scored a goal. We were trying hard to score a goal. Our playmate Mukesh was running very fast after the football. His leg slipped. He fell down and cried loudly with pain. He had hurt his arm. We stopped playing. I rubbed his arm.
I took him to hospital on my motorcycle. The doctor came, he examined him carefully. The doctor gave him a tablet. Then the doctor plastered his arm. The doctor said that his arm had been fractured. He also said that he would be all right in about 2 weeks. Then I went to the house of Mukesh. I informed them about Mukesh. They thanked me. So try to match and find a suitable match for me. वेल तो ऐसा मैच आपको करना है, ऐसा मुकाबला करना है कि कौन इसको और फास्ट पढ़ सकता है। आई एम बिफोर यू, मैं आपसे पहले हूँ। जब लाइन में नंबर में पहले होते हैं तो बोलते हैं आई एम बिफोर यू। आई एम आफ्टर यू, मैं आपके बाद में हूँ। आई एम अबोव यू, लाइन में लिस्ट में मैं आपसे ऊपर हूँ। जैसे लिस्ट बनी हुई है नाम की, तो यहाँ यदि होगा तो आई एम अबोव यू। माई नेम इज अबोव यू इन लिस्ट, और ऐसे ही आप ऊपर हैं, सो दिस रो इज अबोव। इस तरीके से हम कह सकते हैं आई एम बिफोर यू, आपके सामने ही तो बैठा हूँ। आई एम बिफोर यू। वेर आर यू? आई एम बिफोर यू। सो देर इज़ अ लैंडमार्क। तो जब जब आपको कोई फेमस लैंडमार्क दिख जाए तो आप ज़रूर उसकी कदर करें और याद रखने की कोशिश करें। सो लेट्स कॉल इट ए डे। आज इतना ही। लेट्स कॉल इट ए डे का मतलब होगा लेट्स कॉल इट a day. आज इतना ही. So see you tomorrow with a new video. So keep watching with zeal and enthusiasm. Please write down bye in comment. See you. Happy learning.